Hello students, I hope all of you are doing really well. Let's start today's chapter, Triangle and its properties. Inside the chapter, triangle, classification of triangles, altitude of a triangle, median of a triangle, centroid of a triangle, angle sum property of a triangle, exterior angle of a triangle, triangle inequality property, right angled triangle and Pythagoras theorem. So we have already learned about triangles, types of triangles and angles of a triangle. In this chapter, we will revise the previous terms and enhance our knowledge about triangles by studying various properties of triangles. देखिए वैसे तो हमें ऑलरेडी ट्राइंगल्स के बारे में पता है, हम प्रीवियस क्लास में पढ़ के आए हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स और एंगल्स ऑफ ट्राइंगल. ओके, तो इस चैप्टर में हम अपनी नॉलेज को और ज़्यादा बढ़ाएंगे ट्राइंगल्स के बारे में, लेकिन उससे पहले जो हमने प्रीवियस टर्म्स पढ़ी थी उन्हें हम पहले रिवाइज कर लेते हैं. ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्राइंगल की. A closed figure made by joining three non-collinear points is called a triangle. It is denoted by the symbol this. In the given figure, triangle ABC is made by joining three non-collinear points A, B and C. Okay, तो closed figure जो तीन non-collinear points जो एक ही लाइन में नहीं होते. ओके, तीन आपके क्या होते हैं, साइड से बना होता है. ओके, मतलब तीन जो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इनको ज्वाइन करके बनी होती है फिगर. और ट्राइंगल को हम सिंबल से, जो छोटा सा ट्राइंगल होता है सिंबल, उससे डिनोट करते हैं. राइट, सो यहाँ पे फिगर देखेंगे ए बी सी, ये आपके तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इनको जोड़ के बना गया है आपका ट्राइंगल. ओके, सो ट्राइंगल ए बी सी हैज थ्री वर्टिसेस, नेमली ए बी सी. ये जो कॉर्नर्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं वर्टिसेस. थ्री साइड्स, नेमली ए बी, BC and CA. Okay, three angles, namely angle A. एंगल को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, जो आपके वर्टिसेस होते हैं वही आपके एंगल्स हैं. एंगल A, एंगल B and एंगल C. And the three sides and the three angles are called the six parts or elements of a triangle. ट्राइंगल के जो तीन साइड्स होते हैं, तीन एंगल्स होते हैं, ये 6 पार्ट या एलिमेंट्स हम कह सकते हैं ट्राइंगल के. ओके, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स. On the basis of sides and angles, the triangles are classified as follows. Number 1, classification of triangles on the basis of sides. Triangles can be classified into three types according to their sides. Triangle को classify कर सकते हैं हम तीन types में उनके sides के according. Okay, सबसे पहला है scalene triangle. If all the three sides of a triangle are of different length, then the triangle is called scalene triangle. यानी तीनों ही sides अगर triangle की अलग अलग हैं तो वो है scalene triangle. 2, isosceles triangle. If two sides of a triangle are equal in length, then the triangle is called isosceles triangle. अगर triangle की दो sides equal हैं तो triangle है आपका isosceles triangle. 3, equilateral triangle. If all the three sides of a triangle are equal in length, then the triangle is called equilateral. और अब triangle के भी तीनों sides equal हैं तो फिर आपका वो होगा equilateral triangle. Okay, तो ये पहला क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स. नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स. Triangles can be classified into three types according to their angles. Number 1, acute angled triangle. If all the three angles of a triangle are acute, then the triangle is called acute angled triangle. अगर तीनों ही एंगल्स ट्राइंगल की acute है, मीन 60 डिग्री के हैं, तो वो acute angle triangle है. 2, right angled triangle. If one of all the three angles of a triangle is right angle and other two are acute angles, then the triangle is a right angle triangle. Okay, अगर तीनों एंगल में से एक एंगल 90 डिग्री का है और बाकी दोनों acute हैं तो वो आपका होगा right angled triangle. Number 3, obtuse angled triangle. If one of all the three angles of a triangle is obtuse angle and other twos are acute angles, then the triangle is called obtuse angle triangle. अगर तीनों एंगल में से एक आपका obtuse है, मीन्स 90 डिग्री से बड़ा है और बाकी दोनों acute है. acute मीन्स 90 डिग्री से जो छोटे होते हैं, तो फिर आपका वो है obtuse angled triangle. Okay, now altitude of a triangle. An altitude of a triangle is the perpendicular drawn from a vertex to the opposite side. जो एल्टीट्यूड होता है ट्राइंगल का वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, जो एक वर्टेक्स से ड्रॉ किया जाता है ऑपोजिट साइड में. ओके, फॉर एग्जांपल आपका ये जैसे ट्राइंगल है ABC, हमने एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड में. ओके, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है D, दिस इज द एल्टीट्यूड.
So as shown in the above figure, AD is perpendicular to BC. Therefore, AD is the altitude from A to BC. It gives height to the triangle. Means ये जो आपका altitude होता है ये triangle की height होती है. Next, median of a triangle. A median of a triangle is a line segment joining a vertex to the midpoint of the opposite side. As shown in the above figure, D is the midpoint of BC and AD is a median. Median triangle का क्या होता है? Line segment जो कि join करता है vertex को opposite side के midpoint से. Okay, opposite side के midpoint से. See, AD. तो जैसे ये D है ना आपका, ये midpoint है BC का, and जो AD है that is the median. Okay. Example 1. Can the altitude and median be same for a triangle? क्या किसी भी triangle के altitude और median same हो सकते हैं? चलिए check करते हैं. So in an isosceles triangle, altitude drawn on unequal side from the opposite vertex is also its median. Isosceles triangle की अगर हम बात करें जिसमें दो sides equal होती हैं, तो इसमें आपका क्या होगा कि जब altitude draw किया जाता है तो वो आपका median भी होता है. Okay. Also for an equilateral triangle the altitudes and medians are same. इसी तरह से आपका जो equilateral triangle होता है means जिसकी तीनों sides equal होती है उसमें altitude और median आपके same होते हैं. Okay? चलिए next topic की ओर बढ़ते हैं. वो है आपका centroid of a triangle. Centroid is that point where all the medians of a triangle intersect to each other. In triangle ABC, O is a centroid. सेंट्रॉइड आपका पॉइंट होता है जहाँ पे जो मीडियंस होते हैं ट्राइंगल के वो इंटरसेक्ट करते हैं. जैसे कि आपके पास ट्राइंगल ए बी और यहाँ पे इसके जो मीडियंस हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पे? ओ पे. सो ओ इज द सेंट्रॉइड. ओके, नाउ लेट्स डू एक्सरसाइज 7A. क्लासीफाई द ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ बोथ साइड्स एंड एंगल्स. एंगल्स और साइड्स दोनों के बेसिस पे हमें इन्हें क्लासीफाई करना है. एज यू कैन सी हियर तीनों साइड्स इक्वल हैं. तीनों साइड्स इक्वल है दैट मीन्स ये कौन सा ट्रायंगल है आपका? इक्विलेटरल. ओके, देन नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट. दो साइड्स इक्वल है, थर्ड वन इज डिफरेंट बट दो साइड्स इक्वल है, तो ये आपका होता है आइसोसेलेस. ओके बच्चों, तो इसी तरह से आपने बाकी के पार्ट्स कंप्लीट करने हैं. ओके, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल. The sum of all the angles of a triangle is 180 degree. That is, in triangle ABC, angle A plus angle B plus angle C is equals to 180 degree. Triangle की तीन angles होते हैं, आपको पता है 3 sides है, 3 angles होते हैं. तीनों ही angles का sum होता है 180 degree. This is the angle sum property of a triangle. Okay. So proof देखिए, let A is equals to angle A is equals to X, angle B is equals to Y and angle C is equals to Z. Now construct a line LM. Line LM हमने construct की जो BC के parallel है and it is passing through A. Now angle LAB. Okay. LAB, this angle ये आपका है Y. Okay. And angle MAC, this angle ये है आपका Z और Z. Okay. Alternate interior angles. Now angle LAB plus angle A plus angle MAC is equals to 180 degree. क्यों? क्योंकि ये तीनों क्या बना रहे हैं? एक straight line बना रहे हैं, right? So you can write it here, Y plus X plus Z is equals to 180 degree. एक straight line बना रहे हैं. Okay. Now Y plus X हमने value put कर दी, X plus या हम ऐसे भी लिख सकते हैं X plus Y plus Z is equals to 180 डिग्री, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. हैंस प्रूव्ड, राइट? नाउ वेरिफिकेशन इसका करना है. स्टेप 1, ड्रॉ ट्रायंगल ABC, कलर इट्स एंगल एज शोन एंड मेक इट अ ट्रेस कॉपी ऑफ इट. ओके, इस तरह से आपने एंगल्स बनाने हैं. ओके, स्टेप 2, कट द 3 एंगल्स फ्रॉम इट्स ट्रेस कॉपी एज शोन. जो आपने ट्रेस कॉपी बनाई थी वहां से एंगल्स को कट करने जैसे यहाँ शो किया गया. स्टेप 3, नाउ प्लेस देम एज शोन बाय टचिंग देयर आर्म्स. और इस तरह से आपने उनको प्लेस करना है. स्टेप 4,
we can see that these three angles constitute one angle which is a straight angle and has measure 180 degree. Therefore angle A plus angle B plus angle C is equals to 180 degree. तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो तीनों ही एंगल्स हैं वो एक एंगल बना रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, एक स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं. ओके, उनका मेजर है 180 डिग्री. सो यहाँ से ये प्रूव होता है कि तीनों ही एंगल का सम है 180 डिग्री. ओके, चलिए नेक्स्ट इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल. Consider a triangle ABC, extend its side BC to D as shown in the given figure such that it forms angle ACD at vertex C. तो इस तरह से देखिए इसको एक्सटेंड करना है D पे. ओके, तो ये जो एंगल बनेगा एंगल ACD ये आपका क्या है, एक्सटीरियर एंगल है. Hence angle ACD is called exterior angle and angle ACB this one. Okay, so this one is adjacent interior angle. So given figures show the other exterior angles of triangle ABC. इस तरह देखिए हम यहाँ पे भी इस तरह से भी एक्सटेंड कर सकते हैं. ये सारे जो बाहर आपको नजर आ रही है एक्सटीरियर एंगल्स हैं ट्रायंगल के, राइट. लाइक आपका एंगल ABE है, एंगल CBH, CAF एंड एंगल BAG एक्सटीरियर एंगल्स हैं, राइट. नेक्स्ट एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज एक्सटेंडेड देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स. कोई भी ट्रायंगल की साइड को अगर एक्सटेंड कर दिया जाए तो जो एक्सटीरियर एंगल बनता है वो इक्वल होगा उसके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल. ओके, जैसे कि ट्रायंगल ABC में आपका जो था ट्रायंगल ACD. ओके, ACD एक्सटीरियर एंगल है और ये इक्वल होगा एंगल A प्लस एंगल B के बराबर. ओके, दैट इज इक्वल्स टू एंगल X प्लस एंगल Y, वेयर एंगल A एंड एंगल B आर कॉल्ड इंटीरियर ऑपोजिट एंगल. सो प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए एंगल X एंगल Y प्लस एंगल Z इज इक्वल्स टू 180. वाई 180? क्योंकि जो सम होता है ट्राइंगल के एंगल्स का 180 डिग्री होता है. ओके, ऑल्सो एंगल Z प्लस ट्राइंगल ACD इज इक्वल्स टू 180. लीनियर पेयर आपका ये बना रहे, राइट. देन angle Z plus angle ACD is equals to angle X plus Y angle plus angle Z. Okay, and angle ACD is equals to angle X plus Y. Okay, अब आप ये सोचेंगे Z कहाँ गया, एक्चुअली Z और ये Z दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. Okay, so hence proved. Example 2, find in which of the following cases the angles can possibly the angles of a triangle. आपको क्या करना है, तीनों को ही प्लस कर दीजिए. अगर तीनों को प्लस करके 180 आ रहा है तो मतलब पॉसिबिलिटी है कि ये ट्राइंगल के एंगल्स हैं. और अगर 180 से कम आ रहा है, 180 से ज़्यादा है तो देन मीन्स ये ट्राइंगल के एंगल्स नहीं है. ओके, सो इसी तरह से अपने बाकी के एग्जाम्पल्स को करना है. ओके, एक्सरसाइज 7B, फाइंड द मेजर ऑफ द अननोन एंगल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. इनमें हमें अननोन एंगल को फाइंड करना है. ट्राइंगल के 3 एंगल्स होते हैं, 2 एंगल्स हमें गिवन है और एक हमें फाइंड आउट करना है. ओके, सो हाउ यू गोना फाइंड इट, यू विल राइट इट एज एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. एंड reason is by angle sum property of a triangle. Okay, so we have to find angle A. B हमारे पास है 45 डिग्री, C हमारे पास है 65 डिग्री, is equals to 180, right? Angle A plus 45 plus 65 is 110 डिग्री is equals to 180. Okay, अब हम एंगल 110 को दूसरी साइड ट्रांसपोज करेंगे, उसका साइन चेंज हो जाएगा. ओके, सो एंगल A is equals to 70 डिग्री. ओके बच्चों, इसी तरह से आपने बाकी के पार्ट्स भी करने हैं. एंड क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, स्टेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द एंगल्स कैन बी पॉसिबल फॉर अ ट्राइंगल. तीनों को प्लस करके देखेंगे. ओके, 180 आएगा तो पॉसिबल है, 180 से ज्यादा या कम होगा तो नॉट पॉसिबल. ओके, ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी. The sum of any two sides of a triangle is greater than the third side. हमेशा याद रखना कि ट्राइंगल के किन्हीं भी 2 साइड्स का सम तीसरे से ज्यादा होता है. For example, draw 2 triangles and measure their sides. We find that the sum of any 2 sides is greater than the third side. That is, देखिए आप कोई भी 2 triangles draw कर लीजिए और उनकी sides को measure करेंगे तो आप हमेशा देखेंगे कि 2 sides का जो sum है वो तीसरे से बड़ा होगा. Okay, for example, 2 triangles हैं ABC and PQR. Okay, for ABC, AB plus AC is greater than BC जो थर्ड साइड है, और AB plus BC is greater than AC and AC, okay, AC
प्लस BC इज ग्रेटर देन AB, राइट. इसी तरह से ट्रायंगल PQR के लिए भी एप्लीकेबल है कि दो साइड्स का सम तीसरे से बड़ा होगा. कोई भी दो साइड्स आप लेंगे वो थर्ड साइड से बड़ा होगा, राइट. नाउ पॉइंट्स टू रिमेंबर, विदाउट ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स नो ट्रायंगल इज पॉसिबल टू बी मेड. देखिए बिना ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी के कोई भी ट्रायंगल को बनाना पॉसिबल नहीं है. ओके चलिए एग्जाम्पल 9 देखते हैं. चेक विच ऑफ द फॉलोइंग मेक ट्रायंगल्स इफ देयर लेंथ्स आर गिवन. ओके सो कोई भी आप दो साइड ले लीजिए, तीन साइड दिया गया है, कोई भी आप दो साइड ले लीजिए, वो आपका क्या होना चाहिए, फोर्थ साइड से थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए. तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम, 2.5 और 1.5 को प्लस करेंगे एंड इट शुड द सम शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड विच इज 4. ओके सो प्लस करेंगे 2.5 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर. ओके दोनों को प्लस करके कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर. ओके अब ये जो सम है क्या वो थर्ड साइड से ज्यादा है, नहीं है, इक्वल आ गया. दैट मीन्स ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल. ओके और अगर हम सेकेंड केस की बात करेंगे, 2.8 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर 5.8 सेंटीमीटर. ओके क्या ये जो सम आया है वो थर्ड साइड से ग्रेटर है 1.2 सेंटीमीटर से, ऑफ कोर्स ग्रेटर है. तो इस केस में आपका ट्रायंगल पॉसिबल है. ओके एक्सरसाइज 7C. State with reasons in which of the following cases triangles are not possible. आपको रीजन भी बताना है कि इन कौन से केसेस में जो ट्रायंगल है वो पॉसिबल नहीं है. ओके ट्रायंगल ABC में देखिए, AB है 4 सेंटीमीटर, BC है 5 सेंटीमीटर एंड CA है 6 सेंटीमीटर. तो आप कोई भी दो साइड्स को प्लस कर लेंगे. हमने प्लस किया 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर. इज 9 सेंटीमीटर ग्रेटर देन 6 सेंटीमीटर, ऑफ कोर्स ग्रेटर है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, इट इज पॉसिबल. ओके चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है आपका राइट एंगल्ड ट्रायंगल एंड पाइथागोरस थ्योरम. अ राइट एंगल ट्रायंगल हैज वन राइट एंगल and two acute angles. We can classify its sides as follows. Right angle triangle में देखिए आपका क्या होता है, ये आपको दिया गया है, this is perpendicular hypotenuse and this is the base. Okay, अब hypotenuse क्या है, the side opposite to the right angle is called hypotenuse. In triangle ABC, AC is hypotenuse. जो right angle है, this is the right angle, उसके जो opposite side होती है ये hypotenuse होती है. Okay, perpendicular and base, the other two sides forming right angle are called perpendicular and base. बाकी जो दो sides बचे ये perpendicular है, आपका base है. These sides are also known as the legs of the right angle triangle. In triangle ABC, AB and BC are legs. AB and BC, these are the legs of right angle triangle. Okay, now Pythagoras theorem. In a right angled triangle, the square of the hypotenuse equals the sum of the squares of its remaining two sides. In the above right angle triangle, right angle is at B. So, AC square is equals to AB square plus BC square. देखिए Pythagoras theorem क्या कहता है, जो आपका hypotenuse होता है, which is AC. Hypotenuse का जो square होगा वो equal होगा perpendicular के square और base के square के sum के equal. Means is equals to AB square प्लस BC स्क्वायर. ओके और आप ये भी लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेग्स, और हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, राइट. It can also be interpreted as the area of a square on the hypotenuse is equal to the sum of the areas of the squares on the legs. It can be shown diagrammatically as in the given figures. Here, hence, a square is equals to b square plus c square. Okay. अब इसका converse क्या है? If there is a triangle whose sum of the squares of two sides is equal to the square of the third side, then the triangle will be a right angled triangle. अगर एक triangle है जिसका जो दो साइड्स हैं उनके स्क्वायर्स का सम तीसरे के इक्वल है, तो फिर वो ट्राइंगल क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है. ओके इट मीन्स इफ 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर, then the triangle with sides 8 centimeter, 6 centimeter and 10 centimeter will be right angled triangle. Okay, next Pythagorean triplets. When three natural numbers are such that the square of the largest number is equal to the sum of the squares of the other two numbers, they form a Pythagorean triplet. जब कोई तीन नेचुरल नंबर्स ऐसे होते हैं कि जो स्क्वायर होता है लार्जेस्ट नंबर का
वो इक्वल होता है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू नंबर्स, तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट बनाते हैं, जैसे कि 3 4 5 एंड 6 8 10। तो देखिए इसमें क्या होगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल्स होता है 5 स्क्वायर की, बिकॉज 3 स्क्वायर इज 9 एंड 4 स्क्वायर इज 16 एंड 5 स्क्वायर इज 25, तो इक्वल हो गए। इसी तरह से 6 8 ये भी आपके ट्रिपलेट्स हैं। ओके चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। अ ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। ओके एक क्या आपका पेड़ होता है और वो कहाँ से टूट जाता है, हाइट ऑफ 5 मीटर, ये टूटा और ये गिर गया, कि पेड़ है जैसे टूट जाते हैं, कई बार आधी तूफान आता है टूट जाते हैं, राइट। अब उनसे पूछा गया कि उसकी ओरिजिनल हाइट की क्या थी, मतलब जैसे ये ट्री है, माना ये इसकी ओरिजिनल हाइट है और ये यहाँ से टूट गया और ये इस तरह से गिर गया, बट हमें क्या पूछे, इसकी टोटल हाइट। ओके तो कैसे करेंगे, लेट द ट्री ए सी बी ब्रोकन एट द पॉइंट बी। ओके ए सी आपका पेड़ है और माना वो बी पॉइंट से आपका गिर गया। ओके हियर ए बी इज इक्वल्स टू बी डी, वाई, क्योंकि जितना वो टूटा है वही तो नीचे गिरा है, राइट। सो नाउ बी सी डी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके सो हम निकालेंगे यहाँ से बी डी। सो बी डी आपका क्या होगा, बी डी का स्क्वायर होगा 5 मीटर स्क्वायर प्लस 12 मीटर स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25, 12 का होता है 144, टोटल आया 169। ओके नाउ 169 आपका होता है 13 का स्क्वायर, सो बी डी आपका हो गया 13 मीटर। ओके बी डी आपका 13 हो गया है, लेकिन आपसे क्या पूछा है, टोटल डिस्टेंस पूछा है। ओके सो द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप्स इज हाउ मच, 13 सेंटीमीटर, बट आपसे क्या पूछा है, ओरिजिनल हाइट। ओके सो 13 में हम ये 5 प्लस कर देंगे, ओके क्योंकि ये 5 मीटर से ही तो टूटा था, 13 + 5 इज 18 मीटर, यानी कि जो टोटल हाइट आएगी वो होगी ट्री की 18 मीटर, राइट। तो इसी तरह से आपने बाकी के एग्जाम्पल्स भी करने हैं। ओके चलिए एक्सरसाइज देखते हैं 7D। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन ट्राइंगल्स। x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ओके सो देखिए कुछ इस तरह से आपको ये ट्राइंगल दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर, दिस इज परपेंडिकुलर 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, बी डी सी, एंड आपको x फाइंड आउट करना है, यानी आपको BC निकालना है। ओके सो दिस इज राइट ट्राइंगल, दिस इज ऑल्सो राइट ट्राइंगल। ओके सो यहाँ से हमें छोटी वैल्यू निकालनी है, छोटी साइड निकालनी है, तो छोटी साइड कैसे निकलेगी, देखिए DC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बड़ी साइड में से, यानी 15 स्क्वायर में से हम माइनस कर देंगे 12 स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है आपका 225, ओके एंड 12 का होता है 144। तो देखिए अब इसे माइनस करेंगे, 5 - 4 इज 1, 12 - 4 इज 8, और ये 1 - 1 इज 0, सो 81 सेंटीमीटर। तो 81 देखिए किसका स्क्वायर होता है, 81 होता है 9 का स्क्वायर। ओके सो DC और CD की वैल्यू आपके पास आएगी 9 सेंटीमीटर। ओके अब आप ध्यान से देखेंगे 15 12 यहाँ पे भी सेम है, तो ये 9 सेंटीमीटर आएगा, तो ये भी 9 सेंटीमीटर आएगा। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, x आपके किसके इक्वल है, BD प्लस CD और DC। ओके BD इज 9 सेंटीमीटर, CD इज 9 सेंटीमीटर, सो टोटल इज 18 सेंटीमीटर। सो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 18 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, सो इसी तरह से आपने बाकी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, एंड आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। ओके एंड नाउ रिमेनिंग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।